ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਲਾ, ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਿਕਾ, ਅਨੂਜਾ, ਅਗਸਤਿਆ ਸਿੰਘ, ਨੰਦਨੀ, ਅਸਕਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਈਸਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੂਨ 1928 ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੋਮਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆਣ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟਿਊਬਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ETO ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਨ। ਸਨ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1969 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਇਲਾ ਅਤੇ ਜਸਿਕਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਸਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਮਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ।
उसकी वड्याई जो उसकी वड्याई जो उसकी वड्याई जो उसकी वड्याई तू है तेरी नज़र जो कुछ करे सोई पर होएगा सोई पर होएगा जो कुछ करे सोई पर होएगा सोई पर होएगा करना जाए करना तू है तेरी नज़र तेरी सोची कमाल चंद सोची कमाल चंद उल्टी नजर पर गासी उल्टी नजर पर गासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी देख ब्रह्म ज्ञानी जिसकी आशा
सोई कर मानिया सोई कर मानिया गिरही उदासी सो भगवान गिरही उदासी सो भगवान गिरही उदासी सो भगवान गिरही उदासी सो भगवान तू है तेरी रज़ा जो कुछ सोई पर होएगा सोई पर होएगा जो कुछ सोई पर होएगा सोई पर होएगा करना गुरु जी समझाते हैं मौत तेरे सिर ते खड़ी है उसने अपना मुंह अड्या है पता नहीं कदों आके तेनू झपट्टा मार जाना है शिव जी दी फोटो जे देखिए ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇ ਦਾ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ काल ब्याल जो पर्यों डोले राम सिमर पछताएगा मन पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा तान जोबन का गर्भ न कीजे कागज ज्यों गल जाएगा ज्यों जम आए के सिरे पटके ता दिन किछ न बसाएगा सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके चाहेगा कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर चाहेगा संगत विच बैठ के तू तर जाएगा काल ब्याल जो पर्यों डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे गरस है समझ राखो जीत कहे नानक राम भज ले जात औसर बीत नौवें नानक समझा रहे मन कि तैनू एक मौका मिलिया है बंदगी करन दा एक अवसर मिलिया है इसनू अजाई ना गवा यही तेरा अवसर यही तेरी बार कट पीतर तू देख विचार किहो जिया अवसर मिलिया है जे बैर दी झूल विच पएगा नाम नहीं जप सकेगा चार पांव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुल गई है उठत बैठत ठेंगा परी है तब कत मूंद लुकई है दूसरा शब्द आप जी ने गुरु नानक देव जी दा सरवण कीता जेड़ा राग गौड़ी चेती विच 155 अंक ते सुशोभित है श्री राम नामा उच्चर मना ऐ मेरे मन राम दे नाम नू हर वेले हिरदे विच उच्चरिया कर गुरु जी क्यों उच्चरा ता नाल ही जवाब मिलता है आगे जम
खड़ी है। जे तू दुनिया विच विचरदे चंगे काम ना कीते ते सोच तेरा की हाल होएगा। आज भगत कबीर जी ने सूही राग विच हरमंदर साहिब तो सारी मनुखता नूं समझाया है। हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। मेरा दिल ये सोच सोच के डर रहा है कि मैं बंदगी करन दुनिया विच आया सी, ओ काम मैं कीता नहीं, हुण अगों मेरे नाल की होएगा। रैन गई मत दिन भी जाए, पवर गए बग बैठे आए। रैन जवानी जाई जा रही है, बीतती जा रही है, मता किदे बुढ़ापा भी बिना नाम तो बीत जाए। बिरद पयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों न पजे भगवान। रैन गई मत दिन भी जाए। बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबन लगी दे, जे 100 वरियां जीवना, पीतन हो सीखे। देख फरीदा जो थिया, तारी हुई पूर, अगो नेड़ा आया, पिछा रिया दूर। ए शरीर जजरी है, इसको जड़ पहुंचे आए। जड़ तो पाप, बचपन तो बाद हुक्म विच जवानी, ते फिर हुक्म विच बुढ़ापा आना है। उस तो बाद जीवन विच कोई स्टेज नहीं मिलनी, उस परमात्मा दी बंदगी कर ले। ऐ मेरे मौला, तेरी दुनिया में हर एक चीज आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। रैन गई मत दिन भी जाए। चब्बन चलन रतन से सुनियर बह गए, बुढ़ापे विच की होया, ओही पैर जेड़े पहाड़ा ते एकदम दौड़ के चढ़दे सन, हुण कोल बैठे पानी दा गिलास नहीं फड़ सकदे। ओही अखां जेड़ियां दूसरियां नूं बुरी नजर नाल देखदियां सन, हुण उन्हां नूं दिखना ही बंद हो गया। बुढ़ापा आके फिर केड़ी स्टेज है, अगे मौत सामने खड़ी है। तीसरा शब्द आप जी ने प्रभाती राग विच गुरु नानक देव जी दा 1329 अंक ते सरवण कीता। तू है बाहो तेरी रजाए। रजा हुक्म, हुक्म विच सानू सत्कारयोग सरदार अमरजीत सिंह जी छड़ के गए हन। ये परमात्मा दी रजा है। क्यों? जमन मरना हुक्म है, पानी आवे जाए। ए तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, तेरी रजाए। चीनी पछाता हुक्म, तिन कदे ना रोवना, ओता परमात्मा दे हुक्म विच रहंदे हन। तेरा किया मिठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। अखीरला शब्द आप जी ने गुरु नानक देव जी दा श्री राग विच जो 23 अंक ते सुशोभित है सरवण कीता। सज्जन मेरे रंगले, जाए सुते जीरान। मेरे प्यारे सज्जन जेड़े मैनू इन्ना प्यार करदे सी, किसी दे पिता, किसी दे पति, किसी दे कोई रिश्ता, किसी नाल भरा दा रिश्ता, किसी नाल गुआंढी दा रिश्ता, किसी नाल दोस्त मित्र दा रिश्ता। मेरा प्यारा सज्जन हुण कब्रिस्तान विच जाके ऐसा सो गया है कि मैं किसी तरीके नाल भी हुण उसनू उठा नहीं सकदी, किसी अलार्म नाल, किसी भी ढोल नाल। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर कोल चला गया है। बाल कन्या को बाप प्यारा, पाई को अत पाई। इन्हां रिश्तियां दी गल गुरु जी ने भी कीती है
छड़ के चले जाना है। साथ संगत जी, जीरान कब्रिस्तान कबीर जी रोज कब्रिस्तान जाया करते सन, उत्थे बंदगी करते सन। मां पुछदी है, पुत्र तू बंदगी तां घर विच बैठ के भी कर सकदा है? तां ओ जवाब दिंदे हन कि घर विच जीवन चेते आंदा है, जेड़ा नाशवान है, उत्थे मौत चेते आती है, जेड़ी सच्चाई है। कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुकत ना होई। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, वरो एक की शरणा। किते दुनिया दे जंजालां विच फस के उस रमे हुए राम नूं तां नहीं भुल गए जिन्ने सानू दुनिया विच भेजिया है। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया, गाफल अपने हाथ। कबीर हाड चले ज्यों लाकरी, किसी अपने को जदों छड़ के आईदा है शमशान घाट। वेखो बंदा चलिया चौ जनिया दे गल, जीवन कित्थों लोरी तो शुरू होया ते कित्थे खत्म होया, मां दे मोटियां तो शुरू होके चारां दे कंधे ते आके खत्म हो गया। चलांगे तेरे नाल जरूर सजना, पर मड़ियां तो अगे मजबूर सजना। नाल किसी ने नहीं जाना, कोई चाहते हुए भी नाल नहीं जा सकता। कबीर जी ने जदों देखा कि ये हड्डियां इस तरह जल रही हन जिवें लकड़ जलती है, केस इवें जलते हन जिवें घाह जलता है, तां उन्हां दा मन किवें परमेश्वर दी बंदगी विच टिक गया। कबीर हाड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, एहो जग जलता देख के पयो कबीर उदास। क्योंकि आज कबीर जी दा हुक्मनामा हरमंदर साहिब तो आया है, असी उन्हां दियां तुकां विचार रहे हां। कबीर माटी के हम पुतरे, मानस राख्यो नाओ, 4 दिवस के पहुने, बड़ बड़ रुंदे ठाओ, मल्ला मारी जा रहे हां। ए मेरी प्रॉपर्टी, ए मेरी बिल्डिंग, ए मेरा बिजनेस, किन्नी को जगह खीले समय चाहिदी है। कारज 3.5 हाथ, कड़ी ता पौने 4। राखो कंद उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। साथ संगत जी, जदों भी किसी दे संस्कार ते जाइए या अंतिम अरदास ते जाइए, जरूर याद करया करिए कि एक दिन साडा परिवार भी साडे लई इवें ही कीर्तन कथा करवाएगा। आज जिथे असी अति सत्कारयोग सरदार अमरजीत सिंह जी लई अरदास करनी है। कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे को, बहुत न पहुंचल फेरा। सारियां ने आज उन्होंने सच्चे दिलों अरदास करनी है। देहो सजन असी सड़ियां, जो होवे साहिब स्यों बेल। ओ माय डियर फ्रेंड्स, गिव मी योर ब्लेसिंग्स that I may merge with the Lord, with the God, with the Almighty। उथे अपने लिए भी अरदास करनी है कि जिन्ना श्वास साडे बचे हन वो परमात्मा दी बंदगी विच बीत जान। इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला। In this world, earn the profit of Lord's name, so that you may dwell in peace forever।
पईए किते परमात्मा कृपा करे सानू भी जगा दे। कबीर सुता क्या करे उठ के न जपे मुरार, एक दिन सोवन होए गो लंबे गोड पसार। गोडे पसार के एक दिन ऐसे सोवांगे कि कोई उठा नहीं सकेगा। कबीर सोता क्या करे जाग रोए पे दुख, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। तेरा बासा कब्र विच है शमशान घाट विच है, इसलिए ऐ मेरे मन उस परमात्मा की बंदगी करया कर ताकि तेरा जीवन सवर जाए। विचारा करदियां बेअंत बेअंत भुलां होईयां हन। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे संगत बख्शण योग है, बख्श लेना जी। कोटान कोट धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का। आप संगत दे प्यार दे कागज दादा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा मेरा रोम रोम धन्यवादी है। गुरु अमरदास पब्लिक स्कूल दे मुख्य सेवादार ते गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल टाउन दे जो मुख्य सेवादार हन सरदार अजीत सिंह जी सेठी, जिन्हां दे बिहाफ दे मैं सारे स्कूल वालों परिवार को अरदास करती हाँ परिवार लई कि उन्हां नूं परमात्मा बल बख्शे कि ये पाना परमात्मा ने जो हुक्म रजा विच विछोड़ा पाया है उसनों सहन दी परमात्मा आपकी शक्ति बख्शे। आवो मिलो सहेलियो सचड़ा नाम लए हाँ, रोवे बिरहा तन का अपना साहिब संभाले हाँ। साहिब संभाले पंथ निहाले असा भी उथे जाना, जिसका किया तिन ही लिया हुआ तिसे का पाना। जो तिन कर पाया सो आगे आया, असी के हुक्म करेगा। आवो मिलो सहेलियो सचड़ा नाम सतगुरु जियो आप जी दे चरणा कमलों पास दोहे कर जोड़ अरदास बेनती आप जी दरता दे सेवक अति सत्कार लोक सदार अमरजीत सिंह जी आप जी वालों बख्शिश की हुई सवासां दी पूंजी नु भोगदियां परिवार नु सती की विछोड़ा दी गई। समूह ही परिवार जो आप जी का भाना मानदे विछड़ी आत्मा की लोक कल्याणता की जाचना करदे हो गुरु दे दीवान सजाए सजे हुए दीवान अंदर सुमति ही बाणी दा कहन करदे होइयां भुलां गलतियां तो क्षमा करना के तो गुरु को सुमत बख्शनी। विछड़ी आत्मा को अपने चरणा विच निवास बख्शना, पीछे परिवार को भाना मन की सुमरता बख्शनी। दुखां क्लेशां दा नाश करके हृदय धर्म दा प्रकाश दर करनी, प्रीत और प्रतीत बख्शिश करनी। सतगुरु जी पावन पवित्र गुरु अंदर सेवक परिवार को आप जी नु सुंदर पोशाकें पहनाई कीती सेवा दर प्रवान करनी। गुरु जो गुरु का कार्यालय तेल कुल पैदा कीता खजाने भरपूर करने काल कन दूर करने पावन हवियत कड़ा प्रसाद दीजिए गति गुरु का लंगर हाजिर कर प्रवान होवे। परवानिया में कड़ा प्रसाद साथ संगत में वर्ताउं दिया गया होवे जो जी सके पावन पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जपै। सतगुरु जी करो कृपा इस मिले आई संगति हाजिर कर प्रवान कर दे होए। पावन हुक्म की दात बख्शिश करके गरीबन वाजिब करो जी अखर वादा प्राजा पुरुष माफ करनी सुरबाती का दास करने सही प्यारी वेदना मिले प्रणाम चित्या नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी टोटे महला पंजवा घर पंजवा दोपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख और अहम रोग हे तन ते सगल दूर कीन। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख और अहम रोग हे तन ते सगल दूर कीन। रहा बंधन तोर शोर बिठे आते गुर को शब्द मेरे हियर दीन। रूप अनुरूप मोर कश ना विचार्यो प्रेम गयो मोरे हर रंग हीन। देखियो लालन पाट बीच खोई अनग चिता हर खे पदीन। जिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक
सो ठाकुर तिस ही को कीना देखियो लालन पाट बीच कोई आनंद चिता हर के पतीना जिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को कीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन पवित्र गुरु अंदर गुजर बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों समूह परिवार वालों आई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि अपने समय जो समागम की परिवार हमदर्दी प्रकट करके हाजिरी भरी है। परिवार वालों जिथे अन्य संगतां का धन्यवाद उत्थे नाल बेनती है परिवार वालों संगतां वास्ते गुरु का लंगर तैयार किया गया। सारी संगत ने बड़ा प्रसाद जी लेके साढ़े 20 मिनट हाल में गुरु का लंगर सारा छके जाके कृपा करनी और संपूर्ण समाप्ति हो चुकी है। बड़ा प्रसाद दीजिएगा अपनी परोपकार करना प्राप्त होगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी